Good morning, all of you. Let us start with this very energetic session on arithmetic progression. Arithmetic progression is a very simple topic. It has got only 3 to 4 formulas. Basically, they are derived from 2 formulas. Yes, we are going to study about AN, we are going to study about SN in this today's lecture. Also, we are going to solve 7 different sums on this different formulas, 2 formulas. Let us start with the very first introduction of A, D, and AN. Now, this is the analogy which is going to be used in the entire lecture. A stands for the first term, D stands for common difference, and AN is nothing but nth term or last term. AN is nothing but nth term or last term. I mean, I can make it out like till now you must have been acquainted with all these terms A, D, and AN. A has to be the first term, D has to be common difference, AN is the nth term or last term. All right. Now let us go for AN. How to find the nth term? How to find the nth term of a sequence? Now I'll be giving you different examples of all these things. So here let us introduce the formula first. AN is equal to A plus N minus 1 into D, wherein again A has to be first term, A1 is nothing but A, N is the number of terms, N is the number of terms. In many cases you are supposed to find out the number of terms, okay? So N is the number of terms, D is the common difference, D is the common difference. Now as of now, you just need to know what is what, like which term is standing for which definition. For an example, D stands for common difference, N stands for number of terms. So only this thing has to be mugged up right now. Let us go for the general formula for arithmetic progression. Friends, while we study linear equation in 2 variables, we already know that linear equation has got a basic formula, ax plus by plus c equal to 0. All right. And what is the formula for quadratic equation? Anybody? General format of a quadratic equation? That's perfect. Ax square plus bx plus c equal to 0, where a, b, c are constants. All right. So here arithmetic progression has got a basic formula which is a plus d, a plus 2d, a plus 3d, so on and so forth. आप देख पा रहे हो, I'm just switching my language so that it would be more convenient for you as well as for me. Okay, so आप देख पा रहे हो कि a plus d, a plus 2d, a plus 3d एक एक से बढ़ते जा रहा है d. यहाँ पर d एक बार है, यहाँ पर 2 बार, यहाँ पर 3 बार, ऐसे ही बढ़ते जाएगा n minus 1 times into d, a plus n minus 1 times into d. This is called as, my dear friends, this is called as the last term. This is called as the last term. It is also called as an. It is also called as an. A plus n minus 1 into d. Now there you got my point. Please concentrate बहुत ध्यान से और एक बार देखिए. General format of any arithmetic progression is a plus d, a plus 2d, a plus 3d, a plus 4d, dot 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 up to what? A plus n minus 1 into d. What is a plus n minus 1 into d? It is an. An is nothing but last term of an AP. An is nothing but nth term or last term of an AP. Now see, assuming that you people already know some basics about AP, I have started this lecture. This is not the ideal way how I teach. I teach everything in depth, including giving you n number of examples about how to write an AP and all. But I don't think so this is the proper time to actually introduce all these things. You must be knowing all these things, right? Coming back to this again, let's go to the SN. SN is sum of n terms. n terms का एडिशन, जितने भी टर्म्स दिए उनका एडिशन कैसे करेंगे? तो देखो, टर्म का एडिशन तो हम लोग नॉर्मली कैलकुलेशन से भी कर सकते हैं, बट लेकिन बहुत ज्यादा टर्म्स रहेंगे तो क्या करना चाहिए? तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर इट. Sn is equal to n by 2 into bracket 2a plus n minus 1 into d. अगेन दिस इज अ वेरी बेसिक फॉर्मूला. इसके बाद एक नया फॉर्मूला आता है which is Sn is equal to n by 2 a plus l. Now again a is the first term, l is the last term, l is the last term, which is also called as an. Last term is also called as an. Last term is also called as an. अब सुनिए, आप स्टूडेंट हो, मुझे पता है माय रेट ऑफ स्पीच इज वेरी हाई, राइट? आई एम वेरी desperate to go to the sums, towards the sums part. You can slower the speed and actually listen to it once again. Even if I admit some student is not able to catch up the speed or match up the speed, what I would suggest is I'll give you a quick summary of what I have spoken till yet. एकदम
स्टार्टिंग से बताता हूँ, एकदम शॉर्ट में बताता हूँ कि मैंने क्या पढ़ा है। देखो एपी एक सीक्वेंस होता है नंबर्स का, राइट, एंड इसमें आपको दो इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेस लर्न करने हैं। सबसे पहला फॉर्मूला है ए एन का, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इस फॉर्मूला में जो भी यूज हुआ है उसका हम लोग डिस्क्रिप्शन देखेंगे। ए यानी होता है पहला टर्म, एन यानी होगा नंबर ऑफ टर्म्स, डी यानी कॉमन डिफरेंस, ए एन यानी लास्ट टर्म या फिर nth टर्म। नाउ अगर आपके दिमाग में एक कंफ्यूजन है कि सर ये सब तो सही है लेकिन ये यूज कहाँ होता है, कैसे होता है, वी आर गोइंग टू सॉल्व 7 डिफरेंट सम्स, एक दो सम्स नहीं, जो भी आईएमपी सम्स होंगे वो सारे सम्स अभी मैं यहाँ पर कवर करके लेने वाला हूँ। तो लीव इट टू मी, लीव इट टू मी, टेक अ बैक सीट, आई विल हेल्प यू आउट यूजिंग दिस फॉर्मूला। इस लेक्चर के अंत तक आप और आप लोग भी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे ये दोनों फॉर्मूलाज को यूज करने में। दिस वन, ऑल दिस फॉर्मूलाज व्हिच आर रिटन ओवर हियर ऑन द बोर्ड। ऑलराइट, you need to understand the basic definition of AP, the general format of AP, which is A plus D, A plus 2D, A plus 3D, A plus 4D, A plus 5D, जहां तक मन चाहे लगा दो, लास्ट में लिखना पड़ेगा A plus N minus 1 into D। मैंने इतना डीप में बेसिक में इसलिए बताया क्योंकि कोई भी सम कोई सम ऐसा होता है कि जिसमें ये बेसिक डेफिनेशन का भी यूज आपको होगा, राइट। गोइंग टू SN, दैट इज सम ऑफ n टर्म्स। अगर मुझे AP दिया हुआ है और मुझे पूछा है कि एडिशन करके बताओ इन सारे टर्म्स का, कैसे करेंगे एडिशन। दिस इज द फॉर्मूला SN इज इक्वल टू n बाई टू ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। किसी को और अच्छे तरीके से लिख सकते हैं SN इक्वल टू n बाई टू ब्रैकेट a प्लस l, उसी को लिख सकते हैं n बाई टू a प्लस an। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि सर कब कहां पर कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, मेरे पे छोड़ दो, मैं सम्स के साथ सब बता दूंगा। आता फक्त फॉर्म्युले बघून घ्या, जस्ट लुक एट दी फॉर्मुलीज, अंडरस्टैंड व्हाट इज व्हाट। व्हाट इज व्हाट का मतलब क्या होता है, किसको क्या बोलते हैं, किसको क्या बोलते हैं, इतना ही समझ लो बस। ये भी नहीं समझ रहा है, छोड़ दो इन व्हाट सेंस, मेरे पे छोड़ दो, मैं अगले सम्स में आपको सारा एनालॉजी एक्सप्लेन कर दूंगा, राइट। लेट अस गो टू द वेरी फर्स्ट सम। दिस इज द फर्स्ट सम, फाइंड द 10th टर्म, find the 10th term of the AP 2 7 12 dot dot dot। प्लीज कॉन्सेंट्रेट। यहां पर अभी जो भी मैं बोल रहा हूं इसके बाद खोपड़ी में जाना ही चाहिए तुम्हारे। यू नीड टू अंडरस्टैंड, यू नीड टू लुक एट मी एंड लिसन टू माई वॉइस वेरी केयरफुली। एक चीज गौर से सुनिए, टर्म के बाजू में जो भी लिखा होता है ना, लिख देता हूं यहां पर, टर्म के बाजू में जो भी लिखा होगा, टर्म के बाजू में जो भी लिखा होगा से n कहते हैं। इट इज ऑलवेज कॉल्ड एज n। क्या ये लिखा हुआ है कहीं पे, नहीं लिखा हुआ है, लेकिन ये समझने वाली बात है, ठीक है। इसके आगे तुमने एक पहला रूल हमारा समझ लिया कि जहां जहां पर एपी में टर्म वर्ड ढूंढोगे, सुनोगे, उसके पहले जो आंकड़ा रहेगा, जो डिजिट रहेगा, उसको क्या बोलेंगे तुम, n। इट इज ऑलवेज कॉल्ड एज n। n ची किंमत इथं काय दिली आहे, 10। n इज 10 over here। is this clear? It has to be crystal clear. So I'll keep this rule as such. I think I'll shift it somewhere else so that I'll have enough space to solve this sum. All right, let us solve. See, now as per the definition, considering that you people are from CBSE board or even from state board, the sums are almost the same, right? That is the reason I'm using English over here. CBSE के लोग हैं यहाँ पर, देखिए n का वैल्यू, कलर, n का वैल्यू यहाँ पर क्या आया, 10। आई होप देयर इज नो डाउट हियर, राइट। n का वैल्यू तो 10 आया। इसके बाद क्या होगा, देखो हियर a is equal to a1 is equal to 2, a2 is equal to 7, a3 is equal to 12। अंडरस्टैंड दिस थिंग वेरी केयरफुली, बहुत आसान है ये। पहला टर्म जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एक तो a कहेंगे या फिर क्या कहेंगे, a1 कहेंगे। a या फिर a1 एक ही बात है, a2 तो 7 है यहाँ पर, a3 क्या है, 12 है। अब हमको निकालना है d। d कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला है a2 माइनस a1। d इज द कॉमन डिफरेंस। You must have heard me telling you d is the common difference in the earlier part, right? In the introduction part. तो d कैसे निकालते, ध्यान से देखना, आगे का टर्म माइनस पीछे का टर्म, a2 माइनस a1। d has to be 7 minus 2,
टी कितना आया यहाँ पर 5, टी हैज टू बी 5, टी इज 5, टी इज 5 n is 10. I think like there is no doubt here, a is 5 n is 10. All right, now we want to find the 10th term. In order to find any term in NIP, कोई भी टर्म ढूंढने के लिए आप एक ही फॉर्मूला लगाओगे, उसका फॉर्मूला है TN, सॉरी स्टेट बोर्ड में TN होता है, आपके CBSE बोर्ड में AN कहते हैं इसे. AN is equal to A plus n minus 1, AN is equal to A plus n minus 1 into D. Now I'm going to connect everything that I introduced in the earlier part. Take a look at this. I am supposed to find out the 10th term. मेरे को 10th term निकालना है, तो n के जगह मैं 10 लिखता हूँ, A10. A का वैल्यू क्या है मेरा, ध्यान से देखना, A का वैल्यू क्या है यहाँ पर मेरा 2, तो यहाँ पर आएगा 2 प्लस n का वैल्यू फिर से क्या आएगा 10, 10 माइनस 1 इंटू D का वैल्यू क्या है मेरा 5. Very simple. It's very, very simple. A10 is equal to, A10 is equal to, take a look at this, 2 plus 10 minus 1 is 9 into 5. As per BODMAS rule, what is BODMAS rule? Brackets of division, multiplication, addition and subtraction. You need to multiply first. I have found some people doing all this stuff. They add first and then again they multiply, which is very wrong, which is very incorrect. You need to multiply these two terms first. A10 has to be plus 9 5s are 45. 45 plus 2 has to be. This is the answer. So simple it is. Just have to use the formula AN equal to A plus n minus n D. Rest all is history. I hope things are understood. I'll give you enough time to write. Let's go to the next sum. Let's go to the next sum. Here it is, determine the AP whose third term is 5 and seventh term is 9. As I said, मैंने पहले भी कहा था, टर्म के पहले जो भी दिया है उसको क्या बोलेंगे अपन, n बोलेंगे, n. क्या तुम इस चीज से परेशान हो कि यहाँ पर दो बार टर्म लिखा हुआ है, दो बार n आया हुआ है? Yes, you are correct. यहाँ पर दो बार n आया है, two times there is n. इसका मतलब ये होता है कि हमको an का फॉर्मूला दो बार यूज करना पड़ेगा. One more time, I'll get back to this concept once again. As I said in the earlier sum, term के बाजू में जो भी लिखा होगा उसे क्या कहेंगे, n कहेंगे. तो यहाँ पर देखिए, term लिखा हुआ है एक बार, term लिखा हुआ है दूसरी बार. क्या ये n है? Yes, it is n. क्या ये भी n है? n है. ये भी n है? Yes, it is again n. दोनों भी n ही है. ठीक है, तो दो n रहेगा तो कैसे सॉल्व करेंगे? बहुत सिंपल है, दो n रहेगा तो दो बार फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, दो बार फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा. कौन सा फॉर्मूला? सेम फॉर्मूला, an वाला. an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 दो बार यूज करना पड़ेगा. कैसे करेंगे ध्यान से देखना, बहुत आसान है. आई विल डिकोड दिस सम स्टेप बाय स्टेप. First of all, let me write the given part. See, listen, here it is given that third term is 5. Third term is 5. Third term is 5. इसका मतलब n का वैल्यू 3 है, इसका मतलब n का वैल्यू 3 है, बराबर है, राइट? वही मैं अगर इस साइड सॉल्व करूं कि सेवेंथ टर्म इज 9, सेवेंथ टर्म इज 9. Tell me what is the value of n in this side? n is equal to 7, right? n is equal to, यहां तक तो सबको समझ में आ ही गया होगा. n का वैल्यू 3, n का वैल्यू 7. नाउ लेट्स गो अहेड. ध्यान से देखना, हमारा फॉर्मूला क्या है? an is equal to a plus n minus 1 in same formula here. an is equal to a plus n minus 1 in t. Correct? You must be wondering, where is the AP? In the earlier question, there was an AP given to us. 7, 12, there was an AP introduced to us. But in this question, we do not find any AP written over here. Every question, my friend, is different from the other. That makes this question paper interesting, I can say, not tough. It has to be, right? Because इस क्वेश्चन में AP नहीं दिया हुआ है, फिर भी हमको क्या करना है ना, इसको डायरेक्ट फॉर्मूला से सॉल्व करना है. आपको हर क्वेश्चन में AP नहीं देंगे वो लोग, डोंट एक्सपेक्ट इट. ओके, यहाँ पर क्या है, सीधा सीधा जितना पता है, वॉट एवर यू नो, आप उसको पुट करो. बस जेवढं माहिती आहे तेवढीच व्हॅल्यू टाकून द्या,
लेट्स गो अहेड. देखिए यहाँ पर n के जगह मैं 3 लिखने वाला हूँ. a3 इज इक्वल, डू आई नो द वैल्यू ऑफ a? yes, I don't know, I'll write it as such as it is. n is 3, 3 minus 1. Do I know the value of d? Is d. One thing that I know is third term is 5. इसका एक मतलब बहुत ध्यान से समझ लीजिए, थर्ड टर्म का मतलब होता है a3, इसका मतलब होता है इज इक्वल, आगे है 5. थर्ड टर्म मतलब a3. तो बताओ मुझे, अगर किसी ने पूछा टेंथ टर्म यानी क्या होगा? a10. किसी ने पूछा 100th टर्म तो क्या होगा? a100. इट्स वेरी सिंपल, वेरी सिंपल. ऑलराइट, okay, let's get back to this sum. Well, the value of a3 is 5. Value of a3 is, यहाँ पर 5 लिखेंगे. a plus 3 minus 1 is, let's go ahead. 5 is equal to a plus 2. Else we can write a plus 2b is equal to 5. Sorry, सब सही था लेकिन मुझे सब अच्छे से और लिखना है. a plus 2 is equal to 5. Equation number 1. Check. a plus 2d is equal to 5. Equation number 1. Are you getting my point? समझते सके ना? डाउट है किसी को? लाइकवाइज आप मुझे सपोर्ट करोगे, बताओगे कि यहाँ पर क्या आएगा. आपको ये सॉल्व करना है. मुझे बताओ, डिक्टेट करो, मैं लिख रहा हूँ. यस, कम. यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा? जैसे यहाँ पर लिखा है, कम ऑन. सेवेंथ टर्म इज नथिंग बट a7. इज का मतलब इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या आएगा? करेक्ट. बताइए यहाँ पर n के जगह क्या आएगा? 7 इज इक्वल टू a प्लस, इधर क्या आएगा? 7 minus 1 into, what is the value of a7? 9 is equal to, मेरा 9 एक ही तरह लग रहा है इसलिए थोड़ा देता हूँ. 9 is equal to a plus 3. या फिर मैं लिख सकता हूँ a plus 6d is equal to equation number. Is there any doubt? Now what I find is there are two linear equations given over here. यहाँ पर मेरे पास क्या है? लीनियर इक्वेशंस आ गए. याद है x plus 2y is equal to 5? हम लोग ने लीनियर इक्वेशन में ग्राफ्स प्लॉट किए थे, ग्राफिकली सॉल्व किया था, फिर बहुत सारा साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन है क्या, रिडक्शन मेथड और क्या, सॉरी, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, है ना आप लोग को? एग्जैक्टली. तो यहाँ पर लीनियर इक्वेशन आ चुके हैं दोस्तों. इनको कैसे सॉल्व करते हैं? बहुत आसान काम है. इनको अगले पेज पे लिखेंगे. सबसे पहले पेज निकाल के ही रखा है तो लिख देंगे. पहला इक्वेशन है a plus 2d equal to 5. a plus 2d equal to 5. This is the first. Next one is a plus 6d is equal to, a plus 6d is equal to. Now, as per rules of linear equation in two variables, what are the rules of linear equation in two variables? They are very simple, right? You can find out that here both the terms are similar. Both the terms are alike. When both the terms are alike, what we do is we subtract. Let us do subtraction. Subtracting 1 and 2. Subtracting 1 from 2. Any equation number which is just written after from has to be written on the first place, in the first place. One more time. Any equation number which is written after from has to be written in the very first place. हिंदी, शुद्ध हिंदी में इसका मतलब ये होता है कि फ्रॉम के आगे आप जो भी इक्वेशन नंबर डालो तो आप पहले लिखो. तो यहाँ पर क्या आना चाहिए? a plus 6d is equal to 9, and here it has to be a plus 2d is equal to 5. We are going to do subtraction. While we subtract, we know that a and a are supposed to be eliminated. They're supposed to be wiped out. All right, because a minus a is 0. 6d minus 2d has to be 4d. 9 minus 5 has to be 4d is equal to 4. 4 is multiplying d. When it crosses the equal to sign, it will go and divide. 4 upon 4
has to be value of d is value of d is 1. Okay, now what were we supposed to find out? Determine the AP. We are supposed to find out the AP. d का वैल्यू हमको 1 आया, d का वैल्यू 1 आया, तो अभी a का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. पुट d इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1. देखो आपके पास है ना, एक वैल्यू आया ना, तो दूसरा वैल्यू निकालने के लिए लीनियर इक्वेशन में भी यही तरीका था कि आप उसको उठा के कोई भी एक इक्वेशन में पुट करो तो आसान रहे. मुझे पहला इक्वेशन आसान लग रहा है तो मैंने पहले इक्वेशन में पुट करना चाहा. तो यहाँ पर मेरा पहला इक्वेशन है a प्लस 2d इज इक्वल टू, एक छोटा सा कनेक्टिंग लिंक आपको मैं देता हूँ. मुझे पता है एक चीज मिसिंग है, या फिर हो सकता है लाइक आप में से कोई हो जो गया गुजरा हो एपी में, है ना, जिसको ज्यादा नॉलेज नहीं है एपी का. Why am I doing this? What after values of a and d? मतलब a and d का वैल्यू निकालने के बाद आगे क्या होगा? वैसे तो क्यों निकालना है सबसे पहली बात. Why am I supposed to find a and d? Now the people would answer, चलो सर ये तो है, आपको तो AP निकालना है. अच्छा, तो AP निकालने के लिए a और d निकालना जरूरी है, किसने बोला? Said this. AP निकालने के लिए a and d जरूरी है. Well, I said this just before some time. See, while introducing this topic, I said कि AP का फॉर्मूला क्या होगा? पहला टर्म A, दूसरा A प्लस डी, तीसरा A प्लस 2d. तो जब भी आपको AP तैयार करना होगा, यू हैव टू यूज दिस फॉर्मूला. मैंने पहले ही पढ़ाया था, जैसे मैंने बोला था लीनियर इक्वेशन का इक्वेशन होता है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0. जैसे AP का भी एक इक्वेशन है अपना. इक्वेशन तो नहीं बोलेंगे इसको, लेकिन एक सीक्वेंस है. इक्वेशन क्यों नहीं बोलेंगे? इक्वल टू 0 नहीं है, समझ रहे हो ना, खाली एक सीक्वेंस है. तो एपी का सीक्वेंस आपको याद होना ही चाहिए. एपी के सीक्वेंस में एक ही तो चीज कायम है, ए एंड डी. और क्या चाहिए? ए चाहिए और डी चाहिए. दैट इज द रीजन वी आर फाइंडिंग आउट डी. ओके, तो एवरीथिंग इज डायरेक्शन, इट इज वेक्टर, लाइक एवरीथिंग हैज गॉट अ डायरेक्शन. ए के बाद डी या फिर डी के बाद ए क्यों निकाला जा रहा है? यू नीड टू अंडरस्टैंड द कंसर्न. इट्स वेरी सिंपल. इन ऑर्डर टू राइट द एपी, नाउ लेट अस राइट डी, वैल्यू ऑफ डी. ए प्लस 2 इंटू डी का वैल्यू क्या है यहाँ पर? 1 हैज टू बी इक्वल टू 5. ऑलराइट, a प्लस 2 1 2 इज इक्वल, प्लस 2 इधर गया तो क्या होगा रे? -2. तो 5 - 2 आंसर कितना बैठेगा? 3. a का वैल्यू आएगा 3. a का वैल्यू आएगा 3. परफेक्ट. a और d दोनों मेरे पास है. अब मुझे लिखना है AP. AP लिखने के लिए मैंने फॉर्मूला लिख के दिया था यहाँ पर. देखो जनरल फॉर्मेट में फॉर्मूला क्या है? पहला टर्म होता है a, दूसरा a प्लस d, तीसरा a प्लस 2d, a प्लस 3d, so on and so forth. So let me write the formula. देखिए AP कैसे लिखेंगे? यस, आई एम सॉरी, थैंक यू. मैं यहाँ पर लिखना चालू हो गया, नेक्स्ट पेज पे था वो, यहाँ पर लिखना था. थैंक्स. अदरवाइज लेट समझ आता तो टाइम लोग का और इन लोग का दोनों का खराब हो जाता. स्टेटमेंट में ये एडिट करने के लिए भी टाइम नहीं है. फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू a1 इज इक्वल टू a. क्या है a का वैल्यू? सेकेंड टर्म हैज टू बी a2, दैट इज इक्वल टू, हाउ टू फाइंड a2? a प्लस डी. कहाँ से आया ये a प्लस डी? अरे ये देखो यार, फॉर्मूला है a प्लस डी, है ना. फिर क्या है? a प्लस 2d, a प्लस डी. a प्लस डी यानी क्या होगा? बताओ. a का वैल्यू 3 एंड d का वैल्यू 1 हैज टू बी इक्वल टू a2 का वैल्यू आया 4. ऐसा बॉक्स मार के रखो तो फाइनली आपको ही जल्दी समझ आए. थर्ड टर्म, अगेन क्वेश्चन अराइजेस, सर कितने टर्म निकालने? 3 तो निकालो भाई, इतने में थक गए तुम. थर्ड टर्म a3 हैज टू बी a प्लस 2d. तो क्या ये रटना पड़ेगा? क्या ये सीरीज रटना पड़ेगा? बिल्कुल रटना पड़ेगा. क्या प्रॉब्लम है उसमें रटने में? एक बार डी, 2 बार डी, 3 4 5 6 1000 बार डी. सिंपल. यहाँ पर देखो, जब 2 निकालोगे तो यहाँ पर 1d रहेगा, कुछ नहीं तो यहाँ पर क्या होता है? 1 होता है. 2 रहेगा तो 1 रहेगा, ऐसा आप याद रख सकते हो. यहाँ पर 3d निकाल रहे हो तो यहाँ पर 3 निकाल रहे हो तो क्या रहेगा? 2d. जब 4 निकालो तो क्या आएगा? 3d. सिंपल. एक कम रहेगा हमेशा. a3 इज इक्वल टू, फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैं आपको पूछ a100 क्या होगा, तो आपको एक कम बताना है. a प्लस 99d. सिंपल ना, एक कम बताना है खाली.
ऑल राइट, थोड़ा आगे जाएंगे, देखिए A3 इज इक्वल टू A प्लस 2D, A का वैल्यू है 3 प्लस 2, D का वैल्यू है 1. What we get is A3 is equal to 3 plus 2 has to be 5. Yes, the required AP is, the required AP is, what is the required AP? It is A1, A2, 3 कहाँ गया A1, हाँ A1 है 3, पहला 3, दूसरा, फिर तीसरा 5, डॉट डॉट डॉट, it is continued till infinity. Is this clear? I hope it is clear. Required APD is 3, 4, 5. Well, the quick summary of this sum is, the third term is given to you, solve it separately. Seventh term is given to you, solve it separately. Eventually, you will end up getting two simultaneous linear equations. Take them on the next page. Go for subtraction. Almost every time, you will end up doing subtraction. Why? Because every time you'll be getting A over here. These terms are going to be same. इधर भी A आएगा, इधर भी क्या आएगा, A ही आएगा. तो सब्ट्रैक्शन करने में ही भलाई है. सब्ट्रैक्शन कर लो, A और D मिला लो, और फिर क्या है, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म आपका फॉर्मूला है ही A प्लस डी, A प्लस 2D, A प्लस 3D एंड ऑल. आपको वैल्यू पुट करना है, आंसर निकालना है. दैट इज ओनली गेम. ऑलराइट, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. आई होप दिस इज अंडरस्टूड. टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Question number 3. Check whether 301 is a term of the list of numbers 5, 11, 17, 23. Now, how do we check? How do we check whether these 301, हिंदी में बताता हूँ, 301 इस AP के अंदर है या नहीं है? That is the question. क्या 301 इस AP के अंदर है या नहीं है? बच्चा बोलेगा सर दिख तो नहीं रहा है, कहाँ पर है 301? देखो भाई 301 इतने नजदीक थोड़ी ना होगा. 23 यहाँ पर है, तो दूर जाके किधर तो 301 होगा. पक्का होगा या नहीं होगा ये चेक करना है. इधर तो नहीं आएगा, इतने में नहीं आएगा. वो पागल लोग है क्या, इधर ही 301 देंगे नहीं देंगे और आप डिसाइड करोगे? ऐसा तो नहीं है, आपको सॉल्व करना पड़ेगा. ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग. तो भी ऐसा अलग हटके रूल होता है जो कहीं लिखा नहीं होता है. आई विल राइट इट ओवर हियर इन अ हिंदी इंग्लिश फॉर्मेट, व्हाट्सएप लैंग्वेज. ध्यान से देखना, यहाँ पर एक रूल क्या रहेगा. जब भी कोई नंबर AP में है या नहीं, ये भी समझ लैंग्वेज. ये चेक करना है, करना हो. पहला चीज, उस नंबर को AN पकड़ो. इसे एक सवाल आता है, अब AN इज इक्वल टू यहाँ पर क्या आएगा 3. अब तो समझ में आना ही चाहिए. जब भी कोई नंबर आपको देंगे और पूछेंगे कि बताओ ये नंबर AP के अंदर है या नहीं है, उस नंबर को आप क्या पकड़ोगे, AN. कंपल्सरी. सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, तो फाइंड क्या करना है भाई, फाइंड क्या करना है, क्या करना है. ये बड़ा घटिया आ रहा है यहाँ पर. क्या करना है, फाइंड करना है, करना है N, फाइंड करना है N. तो N फाइंड करने से कैसे समझ आएगा कि 301 इसमें है या नहीं है? सिंपल बात है, कैसे समझ आएगा. थर्ड पॉइंट, अगर कनेक्टेड आंसर सारे, एक मिनट, अगर N का वैल्यू होल नंबर आया, तो ही 301 AP में है, एल्स नहीं. I'll help you out with the process once again.
एल्स सी व्हाट आई वांट टू टेल यू, जब आपको एक कोई नंबर एपी में है या नहीं पूछेंगे तो आपको क्या करना है, उसको एन पकड़ना है। ये रहा पहला रूल, तो एन पकड़ना है। एन पकड़ने के बाद फिर क्या करने का, फिर कैसे समझ आएगा कि एपी में है या नहीं है? सिंपल है, एन का वैल्यू फाइंड आउट करो। अगर एन का वैल्यू होल नंबर है, होल नंबर यानी डेसिमल नंबर नहीं चाहिए। होल नंबर मुझे जैसे 28, 29, 201, 501, 601, however it is which does not include decimal point, अगर ऐसा नंबर आया तो क्या बोलने का, यस 301 इज अ टर्म ऑफ द एपी, ठीक है। बट अगर एन का वैल्यू फ्रैक्शन में आया, डेसिमल फ्रैक्शन में आया, तो बोलने का नो 301 डज नॉट बिलोंग टू दिस एपी, इस एपी में नहीं है वो। इज दिस क्लियर? पहला रूल क्या समझा आपने, नंबर को क्या पकड़ेंगे, एन। सेकेंड रूल क्या समझा आपने, एन का वैल्यू फाइंड आउट करने का। एन का वैल्यू अगर होल नंबर आया तो क्या बोलने का, वो एपी में है। होल नंबर आया तो वो एपी में रहेगा, नंबर एपी में रहेगा। और अगर नहीं आया होल नंबर तो इट इज नॉट एन एपी। आई जस्ट गिव यू क्विक डेमोन्स्ट्रेशन एक कैसे सॉल्व होता है। अच्छा, तो ये सारा रूल्स है अपना अपना, राइट। ये टेक्स्ट बुक में अलग से लिखा नहीं होता है, मैंने आपको इसलिए लिख के दिया है। थोड़ा आगे जाएंगे, देखिए 5, 11, 17, 23, द गिवन एपी इज AP is 5, 11, 17, not. Okay. We have to check whether 301 is a term of an AP. As per our discussion, AN has to be what? 301. AN has to be 301. Perfect. Now let's go ahead. We are supposed to find out N. Let us understand how do we find out N. Here there is an AP given to us, so that makes complete sense that we write A is equal to A1 is equal to 5. Has to make some sense, क्योंकि यहाँ पर AP दिया हुआ है। AP दिया हुआ है इसलिए कुछ सेंस बन रहा है कि हम लोग ये लिख रहे हैं। कुछ कुछ सम्स में AP दिया नहीं होता है तो ये लिख नहीं पाते हम लोग। जब दिया होगा तो आपको लिखना ही पड़ेगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसमें सेंस बन रहा है, लिखना ही पड़ेगा आपको, राइट। आगे A2 का वैल्यू बोलो क्या है, 11। A3 का वैल्यू क्या है, 17। ये सब आगे का फालतूगिरी नहीं लिखेंगे तो भी चले, ठीक है। ये AP है बोला है तो A1 A2 बहुत हो गया। क्यों लिख रहे हैं हम लोग, क्योंकि D फाइंड करना है। D का फॉर्मूला क्या होता है, A2 माइनस A1 has to be 11 minus 5 has to be 6। A का वैल्यू हमारे पास आया, D का वैल्यू हमारे पास आया, N का वैल्यू हमारे पास नहीं है। N का वैल्यू हमारे पास नहीं है, ढूंढेंगे। AP में एक चीज और याद रखना मेरी तरफ से, जब तक आपको NDA नहीं पता है आपका सम सॉल्व भी नहीं होगा। N यानी नंबर ऑफ टर्म्स, D यानी कॉमन डिफरेंस, A यानी फर्स्ट टर्म। ये तीनों चीजों का नॉलेज होगा तो ही सम सॉल्व होगा, एल्स सम सॉल्व नहीं होगा, राइट। तो लेट अस गो अहेड। मतलब इनमें से दो चीजें तो आपको पता होनी ही चाहिए, तभी तीसरा हम लोग निकाल सकते हैं। एनीवेज मे बी AN पता होगा तो, राइट। लेट्स गो अहेड, अभी दिखाते हैं आपको ये सब क्या बोल रहा हूं मैं, ध्यान से देखना। AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AN, 301। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A, 5। N minus 1, what is the value of D, 6। I hope things are clear. Things are clear. Perfect ना, समझते सके ना, डाउट है किसी को? Let's go ahead. अब देखो सिंपल काम, इसमें गलती होने का कोई चांस नहीं है। +5 को पहले इधर लेके आओ, क्या होगा, -5। 301 माइनस 5 इज इक्वल टू N माइनस 1 इंटू 6। 301 माइनस 5 कितना आएगा, 296। 296, right? 296 plus 5 has to be 301. This 296 is equal to N minus 1 into 6. 6 मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर जाके क्या करेगा, डिवाइड। 296 अपॉन 6 हैज टू बी N minus 1। समझ रहा है ना सबको, डाउट है किसी को? ऑल राइट, 6 से इसको डिवाइड करो, 6 1 जा 6, 6 4 जा 24, 56, बराबर ना? क्या हो गया, 6 4 जा 24, कितना बचेगा, 56 बचेगा। अरे फिर तो प्रॉब्लम हो रहा है, तो प्रॉब्लम हो रहा है, देखा प्रॉब्लम हो रहा है, पॉइंट में आ रहा है कोई चीज। लेकिन रुको, हो सकता है कि हमारा कोई गलती हुआ हो, जैसे कि अभी तो नहीं हुआ है, लेकिन बच्चा यही सोचता है कि यार मेरे को ऐसा कैसे आया। सिंपल एक काम कर, अगर ये डिवाइड पूरी तरह से नहीं हो रहा है तो एक काम कर, अभी -1 को उधर डालना बाकी है, तो एक काम कर, -1 को इधर डाल पहले, ठीक है। 296 अपॉन 6 प्लस 1 इज इक्वल टू N। मैं चाहता तो डायरेक्ट डिवीजन कर लेता, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप फाइनली सॉल्व कर लो ना। आपल्याला N ची व्हॅल्यू पाहिजे, वी वांट द वैल्यू ऑफ N, राइट। हम ये नहीं जानना चाहते कि इधर क्या आ रहा है,
फाइनली डेसिमल पॉइंट नहीं आना चाहिए, दैट इज द कंसर्न। लेट अस चेक नाउ ये कैसे सॉल्व होगा, यहां पर दिखाता हूं आपको मैं। n इज इक्वल टू 296 अपॉन 6 प्लस 1। हाउ डू वी डू इट? लिसन टू दिस वेरी केयरफुली। 6 यहां पर मल्टीप्लाई होगा, सो इट हैज टू बी 296 प्लस 6 अपॉन 6। n इज इक्वल 296 प्लस 6 हैज टू बी 302 अपॉन 6। Now let us divide 6, let us divide 302 by 6। आपके सामने प्रस्तुत है, देखिए 6 5 30 ऊपर से आया 2। 2 छोटा है 6 से, तो यहां पर क्या आएगा? क्या आएगा यहां पर? यहां पर 0 लेना पड़ेगा, यहां पर पॉइंट लगाना पड़ेगा, बराबर ना? बराबर? अरे गलत है यार, गलत है। क्या करना पड़ेगा? गलत है। 6 0 का 0 करना पड़ता है ना पहले, फिर 2 आता है, फिर 0, फिर पॉइंट आता है, ठीक है? तो 6 3 18, यहां पर 2 50.3। देखो पॉइंट में आंसर आ रहा है, क्या ये डिव्हिजन आहे, डिव्हिजन नाही समजलं? पर मी सांगतो ऐक, माझं काम आहे बघ, मी टीचर आहे, माझं काम आहे शिकवणे। जे फॉर एग्जांपल मैं एक ड्राइवर है, ठीक है, मेरा काम है गाड़ी चलाना, ठीक है? मेरे को तुम रोल्स रॉयस दे दो चलाने के लिए, BMW दे लो, फेरारी, वॉट एवर इट इज, या फिर अल्टो दे दो, गाड़ी तो मैं चला के रहूंगा, मेरे को उसका प्रॉब्लम नहीं है। अच्छी बात ये रही कि तुमने पूछा मेरे को, नो प्रॉब्लम, मैं इसको फिर एक्सप्लेन करता हूँ ये डिवीजन कैसे हो रहा है। ये बड़े धोखे की चीज है, ध्यान से देखना सब लोग। 6 इज डिवाइडिंग 30। अब मैं जब बता रहा हूं तो तुम लिख रहे हो। 6 5 30 ऊपर से नंबर आया, बराबर। 2 छोटा है 6 से, क्या करने का? 6 0 अब भी 2 छोटा है 6 से। ये 2 को 2 बार मौका देना होता है। पहली बार जब दिया था तब ये छोटा था, ऑल ऑफ अ सडन ये ऊपर से नीचे आया, ये छोटा है 6 से, 6 0 0, ये 2 है, अभी अभी भी 2 छोटा है, तो अब इधर सपोर्ट में एक 0 ले लो, इधर डाल दो पॉइंट। 6 3 18, फिर से 2 छोटा है, डाल दो 0, 6 3 18। मुझे पता है बहुत सारे उधर के लोग और कुछ इधर के लोग को एक प्रॉब्लम है, सर पहले ही क्यों नहीं पॉइंट डाला, है ना? यही प्रॉब्लम है ना? सच बताओ। सिंपल आइडिया सांगू, एकदम मस्त आइडिया सांगू, ये डिवीजन विजन खड्ड्यात गेलं, ये सब भाड़ में गया डिवीजन। आई विल गिव यू वेरी सिंपल आइडिया, समझ लो बात को। 50 रुपए तुम्हारे पास है, हाउ मेनी रुपीज? 50 रुपीज। 50 रुपए का अगर तुम 6 नोट गिनो, कितना रुपए आएगा? 300 रुपए। 50 रुपए का कितना नोट गिनना है तुमको? 6 आएगा ना यार 300। तो यहां पर 302 लिखा है ना, पर तो 50 ही होना चाहिए। जर तू 5 पॉइंट लिख रही है यहां पर, अगर तू 5 पॉइंट लिख रही है तो 6 5 तो 30 होता है ना। कळते का कसं करायचंय? जर समझा है बघ, अभी मैं थोड़ा गलत पढ़ा रहा हूँ, तो ऐसा नहीं होना मांगता है कि यही क्लिप डाल के रॉन्ग पढ़ा रहे बोल के, वैसा तो वैसा, चलो उसी बहाने लोग जानेंगे कि मैं रॉन्ग भी तो पढ़ा रहा हूँ मैं कुछ तो पढ़ा रहा हूँ। देखो तुम्हारे हिसाब से ये ऐसा होना चाहिए था, क्योंकि तुम कंफ्यूज इसलिए हो। देखो तुम्हारे हिसाब से कुछ ऐसा होना चाहिए था, 302। वैसे बहुत अलग लेवल का डाउट है यार। 6 5 30 पर से 2 आया, अकॉर्डिंग टू यू ये ऐसा होना चाहिए था। यहाँ पर 0 है, यहाँ पर पॉइंट है ना। 6 3 18, 3 18। प्रॉब्लम ये है ऐसे तो अलाउड नहीं है, ये गलत है। तुम फिर भी तुमको कैसे समझ आएगा गलत किया नहीं किया है? 5.33 को पैसों में सोचो, 0.33 को घलाओ, ऐसा समझ लो कि 5 रुपए और ऊपर के 33 पैसे निगलेक्ट करो। कितना रुपया? 5 रुपए तुम्हारे पास, 5 रुपए। 5 से 6 को मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 30। 300 तो आ रहा है क्या? पर नहीं आएगा ना। वही अगर 50 से 6 को मल्टीप्लाई करो, 50 से 6 को मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है? इसके आसपास आ रहा है। तो ये क्या होना चाहिए था? 50 पॉइंट ही होना चाहिए। ये तो बेसिक हिंट है, एकदम बेसिक हिंट है ये। तो मॉरल ऑफ द स्टोरीज, यहां पर डेसिमल पॉइंट में आंसर आ रहा है, बिकॉज डेसिमल पॉइंट में आंसर आ रहा है। क्या 301 हमारे एपी का भाग है?
हासिल का एपी बोला है मैंने डेफिनेशन में, यस ना, यस कि नो? अगर n का वैल्यू होल नंबर आया तो ही 301 एपी में है, एल्स नहीं. इथे काय बघा, यहां पर n is not a whole number, n is not a whole number, therefore 301 is not a term in the given AP. 301 is not a term in the given AP. I hope things are clear. As I said, you're supposed to find out two things. सबसे पहले तो हम लोग एक चीज लिखना है, an equal to 301. नेक्स्ट चीज हमको क्या करना है, वी आर सपोज टू फाइंड आउट n. n का वैल्यू अगर होल नंबर आया, होल नंबर मुझे डेसिमल नसायला पाहिजे, डेसिमल नहीं होना मांगता है, तो ही ये 301 इसका एपी का पार्ट है. और अगर डेसिमल में आया तो क्या बोलने का, इट इज नॉट एन एपी. ये डेसिमल में आ रहा है, क्या आ रहा है दिखाने की जरूरत नहीं है, दिखाया तो भी चलेगा. ठीक है, लेट्स गो टू द नेक्स्ट सम. यस, आई एम गोइंग टू गिव यू टाइम टू राइट दिस, डोंट वरी एट ऑल. का सब एक स्कैनर भेज दूंगा मैं, आप ये लिख सकते हो पूरा. लेट्स गो टू द नेक्स्ट सम. हियर कम्स द क्वेश्चन. अब आप देख पा रहे हो कि क्वेश्चन एप्लीकेशन बेस्ड आया. इसके पहले सीधे सीधे एपी का मुकाबला था कि भाई ये रहा फर्स्ट टर्म, ये रहा थर्ड टर्म, वॉट एवर द स्टफ मे बी. बट राइट नाउ एज यू सी इन दिस क्वेश्चन, दिस इज एन एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन. यहां पर आपको समझना बहुत जरूरी है कि एपी है क्या, इसमें एपी क्या है. लेट अस रीड द क्वेश्चन. इट इज कॉल्ड एज प्रूफ रीडिंग. It is done in order to make you people understand as well as me to understand what is actually written in the question, for any flaws or defects whatsoever. Let us understand this. A flower bed has 23 rose plants in the first row. What do I get from this? पहला रो जो है उसमें कितना प्लांट्स है, 23. फर्स्ट रो, जब ये खुद बोल रहे फर्स्ट रो, तो आई नीड टू राइट हियर a1 is equal to a is equal to 23. am I correct? Yes, I am very correct. Because first row खुद से कहा है 21 in the second. अच्छा, तो A2 कितना है, A2 है 21. 19 in the third. A3 कितना है, 19. and so on. ऐसे ही चलते जा रहा है. इसका मतलब, अभी रुको एक मिनट रुको, जितना पढ़ा है उतने में ही सोचो. पहले रो में 23 रोज प्लांट्स है, सेकेंड रो में 21, थर्ड रो में 19. ये नंबर्स कुछ कहना चाहते हैं आपसे. बताओ क्या ये नंबर्स एपी में है या नहीं है? है तो क्यों है? इनमें फर्क कितने का है, 2 का फर्क आ रहा है, राइट? तो ये हो गया एपी. ध्यान से, वैसे -2 का फर्क आ रहा है, ध्यान से देखना. हियर लिखना पड़ेगा 23, 21, 19 is an, ये क्या है, एपी है. एपी है तो ए निकालेंगे, डी निकालेंगे. ए तो है वैसे यहाँ पर. a1 इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू 23. पहला टर्म तो हमारे पास है, ठीक है. डी कैसे निकालते हैं भाई, फॉर्मूला क्या है, a2 माइनस a1. बताइए a2 माइनस a1 क्या होना चाहिए, 21 माइनस 23 हैज टू बी -2. माय डियर फ्रेंड्स, अगर यहाँ पर माइनस का साइन गलत हुआ, आपने +2 लिखा, तो समझो इसके आगे सॉल्व करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, आपको वैसे ही 0 मिलने वाला है. सिंपल बात है. हैव टू मेक श्योर कि आप माइनस साइन प्लस साइन बहुत ही सोच समझ कर लिखो. मैथ्स है ये, यहाँ पर कोई एक्सक्यूज नहीं होता है. सही को बिल्कुल सही माना जाता है, गलत को बिल्कुल गलत माना जाता है, ठीक है. तो यहाँ पर -2 आएगा. आवेश में आके बड़े ही उत्साह में हम लोग +2 लिख देते हैं. वाई? बिकॉज हमें आदत हो गई रहती है पॉजिटिव सोचने की और पॉजिटिव नंबर्स लिखने की, राइट? बट हियर इन दिस केस ये उल्टा एपी दिया हुआ है, ऊपर से नीचे आ रहा है, डिसेंडिंग ऑर्डर है. 23, 21, 19 आप देख पा रहे हो. 21 माइनस 23 हैज टू बी -2. तो ये रहा ए, ये रहा डी. आगे सम पढ़ना बाकी है, ध्यान से सुनना. देयर आर 5 रोज प्लांट्स इन द लास्ट रो. यस, 5 गुलाब के झाड़ है लास्ट रो में. लास्ट रो का मतलब an, लास्ट रो. क्या तुमको पता है कितने रोज थे, कितने रो है तुमको पता है? मैं रोज की बात कर, प्रोनाउंसिएशन सेम हो रहा है. कितने रो है तुमको पता है क्या? नहीं पता, इसलिए मैंने क्या लिखा है, n रोज. लास्ट को
लास्ट टर्म को हम लोग an कहते हैं, लास्ट टर्म को हम लोग an कहते हैं, ये मैंने पहले भी कहा था। कब कहा था? आई जस्ट शो यू। लास्ट टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं? an भी कहते हैं। पहले लेक्चर से ही बोल रहा हूं। अब सीधे बैठो, स्टैंड लगा के टेक के मत बैठो, फिसल जाओगे। ओके, तो लास्ट टर्म इज 5, लास्ट टर्म इज 5, an is 5। नाउ पूछा क्या है, देखो, हाउ मेनी रोज आर देयर इन द फ्लावर बेड? बताओ कितने रोज थे। और एक हिंट, और एक हिंट लिख के देता हूं यहां पर। जब भी दिखे हाउ मैनी, तब n फाइंड करें। जब भी दिखे हाउ मेनी, ये सारा चीज इनबिल्ट है, मतलब ये टीचर को पता होता है, स्टूडेंट को लेट समझ आता है, इसलिए स्टूडेंट को हार्ड जाता है सम। टीचर को पढ़ा पढ़ा के पता हो जाता है कि हाउ मेनी यानी क्या फाइंड करना है। बच्चा सोचते रहता है हाउ मेनी, कभी एपी में निकाला ही नहीं था हम लोग ने, राइट। एपी में तो इतना ही फॉर्मूला है, फॉर्मूला बेस्ड तो है ही क्वेश्चन, लेकिन आपको अर्थ समझना होगा कि हाउ मेनी का मतलब क्या फाइंड करना है, एन फाइंड करना है। लेट अस फाइंड आउट नाउ, इट इज अ वेरी सिंपल टास्क। कैसे करेंगे? अगले पेज पे जाते हैं हम लोग। अगले पेज पे जाने से पहले हमारा एपी क्या एक बार देख लेंगे। 23, 21, 19। ओके, द गिवन एपी इज 23, 21, 19। ओके, तो a इज इक्वल टू 23, d इज इक्वल टू -2, an इज इक्वल टू 5। दिस इज जस्ट फॉर अ रेफरेंस। हम लोग ने पिछले जो भी पेज से डेटा लिखा है, an का वैल्यू है हमारा, राइट, ये इंपॉर्टेंट वैल्यू है। द प्रॉपर बॉक्स, इंपॉर्टेंट वैल्यूज है हमारे, तो अलग से लिखना ही पड़ेगा। डी तो है, राइट। नाउ वी आर सपोज टू फाइंड n। कैसे फाइंड आउट करेंगे n? बहुत आसान काम है। an का फॉर्मूला लगा दो, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an के जगह क्या पुट करोगे? 5। 5 इज इक्वल टू, बताओ a का वैल्यू क्या है? 23, n माइनस 1 इंटू डी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ d? -2। आई होप थिंग्स आर क्लियर। समझ आ रहा है सबको? लेट्स गो अहेड, लेट्स गो अहेड। देखिए, ये प्लस 23 इधर गया तो क्या होगा? -23। इट हैज टू बी 5 माइनस 23, हैज टू बी n माइनस 1 इंटू -2। 5 माइनस 23 हैज टू बी -18, n minus 1 into -2. The reason behind stressing, changing the mood of my voice is do not avoid writing minus sign. You have to make sure plus and minuses are at perfect places. Now, -2 is multiplying. When it goes to the, when it crosses the equal to sign, multiplication का क्या होगा? Division. Here it is -18 upon -2 has to be n minus 1. Minus minus getting wiped off. What you get is 2 ones are 2, 9s are 18. 9 is equal to n minus 1. Minus 1 comes here, becomes plus 1. And here you get n is equal to 10. What is n? Number of rows in a flower bed. तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा फाइनल स्टेटमेंट में, the number of rows in the flower bed. Number of a flower bed are n is equal to 10. Simple. n is equal to 10. In a problem involving AP, how do we identify whether the problem belongs to AP? Now that's a very simple question, but why I don't know, I felt like addressing this concern. How do you understand, how do you make out that the question belongs to AP? Because you people will be having a number of word problems belong to surface area, volume, and equation, linear equation, quadratic equation. AP is quite easy to identify. In AP, they'll give you something of this sort, like first row, first, second, third. You will be getting multiple numbers in the question, which would help you figure out that this sum belongs to AP. That's not actually a very big thing or trouble.
The main trouble is how to decode the question and put it actually in the form of an AP, right? Always, always, once you have figured out that the question belongs to AP, always try to find out the sequence. Like the way I've done it over here, the very first row, there are 23 rose plants. सेकंड, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था, मतलब मैंने कुछ ज़्यादा काम ही नहीं किया, इन लोगों ने खुद ही बोला है फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो। तो हम लोग आज के ही सेशन में एक ऐसा सम लेंगे जिसमें आपको समझना, लाइक इट वुड बी अ बिट टफ फॉर अ पर्सन टू अंडरस्टैंड कि एपी है क्या, इसमें एपी क्या है, बट आई विल हेल्प यू अंडरस्टैंड द सेम, राइट? राइट नाउ आई थिंक, आई गेस ये समझ में आ गया सबको, राइट? ऑलराइट, लेट्स गो अहेड। दिस इज द कैलकुलेशन पार्ट। While switching, switch on the signs, like change the signs. Find n. That's it. Well, there comes another sum. Now see again, how many? What do you mean by how many? What are we supposed to find? N. We are supposed to find n. मैंने बोला था यार यहाँ पर, to be very confident. जब भी दिखे how many, क्या निकालना है आपको? n निकालना है. You are supposed to find n. Find n. Now see, the AP is given to you, and the sum changes. The sum changes. How the sum changes? Now listen to this. Till now, we were solving formulas, all of finding out the nth term, an. From this sum onwards, or we can say as of now, in this sum, we are going to use the formula for Sn. The very first time we are going to use Sn. All right. Let's do a proofreading. Let's read the question along. Question says, how many terms of the AP 24, 21, 18 must be taken so that their sum is 78? इनमें से कितने टर्म्स आपको लेने पड़ेंगे, इनमें से कितने टर्म्स आपको लेने पड़ेंगे जब उनका एडिशन कितना आएगा? 78। वैसे सच बताए, ये बहुत आसान क्वेश्चन इसलिए बनता है क्योंकि जो बाहर का व्यक्ति है, लाइक रास्ते पे घूमने वाला व्यक्ति है, जो थोड़ा सेंसिबल है मैथ्स को, जिसको मैथ्स की थोड़ी बहुत समझ है, उसको अगर ये सवाल दिया जाए बिना एपी के किसी ज्ञान के, वो ये सवाल आराम से सॉल्व कर सकता है। लेकिन तुमको इसमें इंटरेस्ट होना नहीं चाहिए बिल्कुल, क्योंकि तुम्हारे पास फॉर्मुलीज है। अब कैसे कर सकता है अगर ये सवाल है, तो मैं जस्ट ऊपर आपका क्यूरियोसिटी खत्म कर देता हूँ। देखो ये 24 है, ये 21 है, ये 18 है, कर दो यार इनका एडिशन। 8 + 1 9 + 4 13 3 1 + 2 4 + 5 1 6। अच्छा ये 63 तक ही आ रहा है, एडिशन क्या होना मांगता है? 78। तो देखो मैं जस्ट ऊपर बता रहा हूँ, ये 24 है, ये 21 है, 18 है। मुझे और एक चीज बताओ, अगर ये एपी है तो बताओ इनमें गैप कितने का है? 3 का गैप दिख रहा है हमको, है ना? तो आप एक देख पा रहे हो, ये ट्रेंड क्या है? ऊपर से नीचे है, डिसेंडिंग ऑर्डर का ट्रेंड है। 24 के बाद 21 के बाद 18, तो इसके पहले क्या आएगा भाई? 15 आएगा। और 3 का गैप है ना, 15 आएगा। अब एक बार एडिशन करके देखेंगे ऐसे ही। देखो 8 + 5 13 + 1 14 + 4 18 8 1, ये 7 ही आना चाहिए। देखो 1 + 1 2 + 2 4 6 + 1 7 आ गया 78। अच्छा तो क्या पूछ रहे, हाउ मेनी टर्म्स? अच्छा तो 4 टर्म्स है, इनका वैल्यू क्या आना चाहिए? ये सवाल अगर एमसीक्यू में आता है तो इसी तरह आपको करना है, ठीक है? इसी तरह आपको करना है। यू नीड टू मेक श्योर कि आप कम समय में इसको कैसे सॉल्व करोगे, ठीक है? बट नॉट एडवाइजेबल आई कैन से, बिकॉज अगर ये टर्म बढ़ा के दिया आपको, लंबा टर्म दे दिया बड़ा, ये सब पॉइंट नहीं है इसमें। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको पूछते हैं कि बताओ स्टेप्स क्या है, इसके स्टेप्स निकाल के हम लोग दिखाएंगे आपको कि n का वैल्यू 4 आना चाहिए। लेट्स गो अहेड, लेट्स गो अहेड, ध्यान से देखना सब लोग। लेट्स गो अहेड। इस लेक्चर में वैसे और एक सम बाकी पड़ता है, 6th के बाद एक 7th सम, उसके बाद हम लोग रुकेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के लिए, उसके बाद हम लोग नया सम ले लेंगे, राइट? न्यू सीक्वेंस हम लोग। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी 24 21 18 मस्ट बी टेकन? अच्छा वो सब छोड़ दो, ये एपी है, इसे मैं पूछ रहा हूँ। हियर द एपी इज 24 21 18 ... a is equal to a1 is equal to 24, a2 is equal to 21, बोलो d is equal to a2 minus a1 has to be 21 minus 24 has to be -3। ठीक, जैसे ही ये AP दे दे, ऐसा सीक्वेंस दे दे, झपट पड़ो इन चीजों पे, ये सब लिखना ही इंपॉर्टेंट है, लिखना तो पड़ेगा आपको, राइट? तो ऑलवेज मेक श्योर कि ये लोग जब AP देंगे आपको इतना डेटा तो लिखना ही है।
हाउ मेनी टर्म्स का मतलब n निकालना है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n। ठीक है, अब सुनो एक मेरी बात, यहां पर क्या बोल रहे हैं, सम इज 78, सम 78 है। अच्छा, वो सारे एपी का एडिशन कितना आ रहा है, 78। इसका मतलब Sn का वैल्यू 78 दिया हुआ है, सम ऑफ n टर्म्स, सारे ही टर्म्स का एडिशन कितना दिया हुआ है, 78। Sn को 78 लिखना है। ऑल राइट, तो चलो अब भाई Sn का फॉर्मूला पढ़ेंगे। Sn इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, n बाई टू इंटू ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। Sn इज इक्वल टू n बाई टू इंटू ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस वन डी। इट्स अ वेरी सिंपल फॉर्मूला। आपको खाली वैल्यू पुटअप करना है, Sn के जगह 78 लिखेंगे, वी आर गोइंग टू राइट 78 हियर, n अपॉन टू एज इट इज, फिर आएगा 2 इंटू ए का वैल्यू है 24 प्लस n माइनस वन एज इट इज, डी का वैल्यू क्या है भाई, -3। माई गॉड, नाउ इट इज गोइंग टू एंड अप विद अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, के बाहर भी n है अंदर भी n है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ही फॉर्मेट में ये जाने वाला है। इसके फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे, लेट अस अंडरस्टैंड कैसे। ध्यान से देखना। देखिए दोस्तों, यहाँ पर सॉल्व करने का एक तरीका होता है, नीचे जो 2 है डिवीजन में, पहले इसको खिसका दो इस साइड मल्टीप्लीकेशन में। 78 इंटू टू इज इक्वल टू n इंटू ब्रैकेट 24, टू का क्या आएगा 48। क्लियर है ना। अब एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बताने जा रहा हूँ, ध्यान से देखना, यहाँ पर साइन चेंज हो रहा है, यहाँ पर साइन चेंज हो रहा है, प्लीज कॉन्सेंट्रेट। देखिए, ये माइनस प्लस क्या होगा भाई, यहाँ पर माइनस, माइनस प्लस होगा माइनस। ठीक, माइनस प्लस हो गया माइनस, तो एक बार खाली 3 लिखेंगे, n माइनस वन। एक स्टेप बढ़ा रहा हूं मैं आप लोग के लिए, ठीक है। आप पूछोगे ये माइनस कहाँ गया, ये माइनस इस प्लस के साथ क्या हो गया, माइनस। एक स्टेप मैंने जानबूझ के बढ़ाया ताकि आपको समझ में आ जाए। 78 टू था तब तक कर लेना था, 156 आ रहा है, तो इट 16 6 1 14 15 156 n इंटू ब्रैकेट 48 माइनस माइनस 3 इंटू एन इज -3n, माइनस माइनस होता है प्लस, आगे आएगा 3। ऑल राइट, 156 is equal to n into bracket 48 plus 3 has to be 1 minus 3n, 1 minus 3n। I hope things are clear up till here. Now अभी आपको बाहर के n से अंदर मल्टीप्लाई करना है, it has to be 156 is equal to n into 51 is 51n minus n into 3n has to be 3n square, 3n square। All right, I think Angad, right? Angad, may I have your, the very beautiful part is this session is going to be uploaded as it is on YouTube. I want you to solve from here. Yeah, go ahead, go ahead. Let's see ये कैसे कर रहा है अभी। Perfect.
Has it solved it correctly? देख लो सही किया है यहाँ तक. Go ahead, continue, continue. कंटिन्यू करो. Fast, on time. What makes you look down while I'm teaching? Consist 10 to 12 down. That is the reason you have been called upon to solve. And this would be as such uploaded on YouTube. What makes you look? Get back to glad you could produce a triple here. It was very correct. The other part, quadratic part, again, quadratic part has to be handled very carefully. 78 into 2 has to be 150. I'll write the steps once again. Viewers are supposed to skip this part and move ahead, although I'm not able to edit it. Like I would be able to, but I don't have time. Find any sense in it. 78 into 2, n is going to multiply. 24 into 2 has to be 48 plus. Here it is. Here the sign changes. Here the sign changes. Plus minus has to be minus 3 into n minus 1. 78 2s are 150. N into bracket. 48 minus 3 into n is 3n minus has to be. All right. These were the things that were already taught to you, followed by another step as well. 150 n into 48 plus 3 is 51 minus 3n. 156 has to be n into 51 is 51n minus 3n square. 3n square. Now, always remember, as we came across a particular variable, we can say variable over here, like in terms of, in aspects of quadratic equation, n is always called as a variable. When we come across any term which has got square, जब भी हम ऐसे कोई टर्म के पास आते हैं जिसके पास स्क्वायर हो, समझ लेना कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जा चुका है, हमको इसका फैक्टर्स निकालना बहुत ज़रूरी है. तो ये तो बात बहुत मामूली थी, लेकिन और ही कुछ कहना चाहता हूँ मैं, और भी कुछ कहना चाहता हूँ मैं. जब भी आप एन स्क्वायर या फिर स्क्वायर वाले टर्म को नेगेटिव साइन देखे, समझ लेना कि यहाँ पर आपको उसको पॉजिटिव करना बाकी है. जब तक आप उसको पॉजिटिव नहीं करोगे, आपको ये आगे सॉल्व हो ही नहीं पाएगा. आई रिपीट माई explanation in a very short way. Whenever you come across square term with a negative sign, stop for a moment, breath high, shift that term to the another side so that it is positive, and then go and find out factors. Unless and until you do this, there is no way you come out with a very beautiful answer. Coming back to this, minus 3n square has to be shifted to the right hand side. You get plus 3n square. Even 51n has to be shifted here. What we get is 3n square, positive 3n square, plus 51n has to be minus 51n. It was not replaced. It was as it is in that place. So there is no question of changing its sign. It has to be plus 156. Am I correct? Are you getting my point? These two terms have to be placed like they have to be shifted to the left hand side so that their signs changed. This was not placed this was not changed. It remained as it is. Now we are supposed to find out the factors. Finding out factors of such dreadful terms again is a headache. How do we actually go about it? Let us write it separately on a separate page so that I'll be able to make you understand how to find out the factors. We have a different page. 3n square minus 51n, 3n square minus 51n plus 150 plus 150. Now see, within this sum, I'll be helping you out how to find out the factors of a quadratic equation. I know it has been a lot of time that we are solving this sum, but you people have a button called as
fast forward, right? You can increase the speed by 2 times or 1 time, or you can even skip by 10 seconds, whatever it is, whatever you feel appropriate, and you can actually go to the part which you haven't understood. This is for students who not know, or who are not able to factorize things, right? Now listen to this. Finding this terms so bigger, like the very basic thing of factorization is multiply the first term with the last term. Now if I multiply 156 by 3, it has to be 3 6 are 18, 8 150. I do not know any table which has got 4 8. Who am I? I am a student. I'm a student speaking to myself. I question myself whether or not I know any number, any table in which 468 occurs. I don't know it. I simply don't know any table where 468 occurs. What can be the beautiful way out? I'll tell you once again. ध्यान से सुनो, बहुत ध्यान से सुनो. जब भी हिंट सुनो क्या है, हिंट सुनो क्या है. जब भी आपके पास इस टर्म के बाजू में नंबर रहेगा ना, आपको एक चीज फॉलो करना है. इससे इसको भी डिवाइड करना है, इसको भी डिवाइड करना है, इसको भी डिवाइड करना है. 99% ऑफ दिस सम्स ये सक्सेसफुली होगा आइडिया. 99% ये नंबर से ये सब डिवाइड होने ही वाले हैं. और अगर नहीं हो रहे, एक बार इधर का कैलकुलेशन चेक कर लेना, ठीक है? कि इतना बड़ा फैक्टर्स का सीन होता नहीं है. हुआ तो तुम्हारा नसीब खराब है, समझ लो, क्योंकि ये सम एपी का है और उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया है. अगर ये खुद क्वाड्रेटिक का होता ना तो इससे घटिया हो सकता था. पता है, एपी के अंदर जब क्वाड्रेटिक आएगा तो वो सिंपल आएगा. टू नॉट बी दैट ड्रेडफुल. अंडरस्टैंड दिस फैक्ट. तो ऑलवेज मेक इट अ पॉइंट, wherever, like whenever you see any number besides the square part, make sure आप उससे सबको डिवाइड करोगे. ठीक है? लेट्स डिवाइड. हाउ? डिवाइडिंग बाय 3. Dividing by 3 on both sides. 3 and now for people who do not actually know this, I need to make sure that the steps are very easy. 3n square divided by 3, 51n divided by 3, 156 divided by 3, 0 divided by 3. The very sarcastic part or controversial part is something like this. For people who do not know the basic of all such things, वीडियो के यहाँ तक वो आएंगे ही नहीं. ये पहली बात है. जिनको वैसे ही नहीं आता है ना, उसका इंटरेस्ट पढ़ने में वैसे ही नहीं होता है. पहले 10 सेकंड 20 सेकंड देखते, स्किप, खत्म. लेकिन फिर भी अगर तुम बने हुए हो, यू आर स्टिल हियर एट दिस पार्ट ऑफ द वीडियो, दिस इज जस्ट फॉर यू माय फ्रेंड. ध्यान से देखना, 3 से डिवाइड कर रहे हैं हम लोग, 3 और 3 डिवाइड होगा यहाँ पर. 3 1 जा 3, 3 17 जा 51, होपिंग दैट यू नो द 17th टेबल. ये 17 का टेबल आपको आता है. 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 2 जा 6. 3 से 0 को डिवाइड करो, यहाँ पर क्या आएगा? 0. बचता क्या है? एन स्क्वायर माइनस 17n प्लस 52 इक्वल टू 0. देखना इक्वेशन थोड़ा हल्का हो गया दोस्त, इक्वेशन हल्का हो गया. अब भी वही रूल है, फर्स्ट नंबर इनटू लास्ट नंबर. लेकिन अभी क्योंकि 1 है तो 1 इंटू 52 क्या होगा? 52. 52 का फैक्टर्स क्या आएगा? 52 को देख के ही दिमाग में आना चाहिए. 14 इंटू 3 इज 52. 14 3 जा 52, राइट? बराबर ना? गलत है यार. 13 4 जा 52, 14 3 जा 42 होता है. तो टेबल रन करो यार. अभी कैसे बोलूं मैं तुमको कि टेबल रन करो, 10वीं में हो तुम, ठीक है? 13 4 जा 13 एंड 4 का एडिशन करोगे तो कितना आएगा? 17. लेकिन हमको क्या चाहिए? -17 चाहिए. कैसे लाएंगे -17? -13 और -4 लेंगे ना. कितना आएगा? -17. सिंपल बात है. तो यहां पर क्या आएगा? देखो, n स्क्वायर -13n -4n प्लस 52 इक्वल टू 0. -17n को कैसे लिखा गया है? -13n -4n. सिंपल बात है एकदम. अब इसमें कॉमन क्या आएगा? इसमें कॉमन आता है n, अंदर बचता है n -13. इसमें कॉमन क्या आएगा? हाउ टू टेक आउट कॉमन फ्रॉम दिस पार्ट? गिव मी अ मोमेंट, ऐसा उड़ा दूं मैं. ओके, इस पार्ट में से कॉमन कैसे निकालेंगे?
रिमेंबर दिस, माइनस प्लस रहेगा तो क्या लिखेंगे आप, माइनस ही लिखोगे। इन दोनों में से छोटा नंबर कौन सा, 4 को बाहर लिखोगे, अंदर के ब्रैकेट में इसी को छाप दोगे, n माइनस 13। सिंपल बात, माइनस प्लस रहेगा तो माइनस ही बाहर लिखने का है, छोटा नंबर कॉपी करना है बाहर, अंदर के ब्रैकेट में इधर का डाल देना है, सिंपल। तो हियर इट हैज टू बी n माइनस 13 into bracket n minus 4, n has to be 13 और n has to be 4। दो दो वैल्यूज आया, वैसे हमने तो एक ही वैल्यू निकाला, तो यहाँ पर दो दो वैल्यूज आया, इसलिए फॉर्मूला लेके ही सॉल्व करो। अगर ऑप्शन में रहेगा सिर्फ 4 तो बात अलग है, ठीक है। दो दो वैल्यूज आया, कैसे करेंगे ध्यान से देखना। जनरली एमसीक्यू में दो दो वैल्यूज आपको नहीं देंगे, राइट। और अगर दिया है तो जिसके साथ 4 जुड़ा हुआ है वो वैल्यू लिख देना। यहाँ पर लिखेंगे, क्वेश्चन क्या था हमारा वैसे, कहाँ से शुरुआत किया था हम लोग ने, टावर बेड वाला तो हो गया। हाउ मेनी टर्म्स, कितने टर्म्स एपी के आप मिलाओगे, ऐड करोगे तो 78 आएगा। यहाँ पर आंसर क्या है देखो, यहाँ पर n का वैल्यू 13 आ रहा है, n का वैल्यू 4 आ रहा है। एक मिनट के लिए रुक जाओ, एक मिनट के लिए रुक जाओ, सोच। आई एम सो सॉरी अगर मैंने एग्जैगरेशन में, मतलब एग्जैगरेशन तो नहीं, फ्लो में कुछ उल्टा सीधा कह दिया रहेगा, मतलब गलत सम के बारे में कह दिया रहेगा। एक मिनट रुको, वी नीड टू अंडरस्टैंड द फैक्ट दैट how many terms of the AP must be taken so that their sum is 78। ये पहला टर्म, ये दूसरा, ये तीसरा, इसके बाद चौथा कौन सा आता है, 15। चार टर्म्स लेके तो 78 आ रहा है, 13 टर्म्स लेके कैसे आएगा 78, कौन बताएगा। देखो आंसर तो दो दो आए हम लोग को, राइट, आंसर दो दो आए हम लोग को, 13 टर्म्स लेके कैसे आएगा 78। मैं तो चार ही टर्म्स में लाया ना 78, 24, उसके पीछे 21, 3 से कम, उसके पीछे 18 और 3 से कम क्या आएगा 15, और 3 3 सा गैप है ना, चार टर्म्स का एडिशन 78 आता है, ये बात समझ आ रही है। लेकिन 13 टर्म्स लेके 78 कैसे आएगा, ज्यादा आएगा ना, फिर कैसे यार, कैसे, हाउ। तो क्या सिर्फ 4 ही आंसर है, 13 आंसर नहीं है, बताओ सोचो, क्या 4 ही आंसर है, 13 आंसर नहीं है। जो खुद को बुद्धिमान समझ रहे थे वैसे ही बुद्धिमान है, अप्रिशिएट योर नॉलेज, इंटेलेक्ट, क्या बताओ कैसे, हाउ कम 13 आंसर है। मैं तो बोल रहा हूं, मैं 13 आंसर के पक्ष में हूँ, यस कमान, साक्षी बोलो, ट्राई करो, ट्राई करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाही मी सांगतोय ना, दोन्ही ही आंसर आहेत, 13 भी करेक्ट है, 4 भी करेक्ट है, लेकिन 13 क्यों करेक्ट है बताओ, दैट इज माय क्वेश्चन टू यू। यस 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 बोलो, 13 6 78 से क्यों ऐसा होगा 13 6 78 से क्यों ऐसा होगा। ऑनलाइन जो पढ़ रहा है अगर यहाँ तक रुका हुआ है तो एक चीज़ समझ आएगा, बहुत अच्छा हुआ मैं रुका, क्योंकि हर सम को मैं अलग तरीके से पढ़ाने का जज्बा रखता हूँ, मेरा ये स्वभाव ही है। तो मैं सोचता हूँ वो तुमको करने पे मजबूर करूँ, अच्छा वाला चीज़, अच्छा ही सोचता हूँ सम के बारे में, एग्जैक्टली exactly। तो 13 आंसर कैसे आएगा मैं दिखाता हूँ राइट नाउ। इज गोइंग टू बी अ वेरी न्यू एक्सट्रीमली फैबुलस एक्सपेरिमेंट, लेट अस गो फॉर इट। एपी को गहराई तक समझेंगे, ध्यान से समझना। मुझे एपी आप खुद प्रोड्यूस करके बताओगे, टू पीपल आर गोइंग टू डू इट फॉर मी। 24 21 18 तो मेरे पास है, 24 21 18, बताओ इसके पीछे क्या आएगा, बताओ इसके पीछे क्या आएगा। तीन तीन नहीं कमी करा रे, कितना ना, 12 और 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 0 0 और -3 और 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 बराबर। एपी लिखा मैंने, एपी का वाट लगा दिया अपन ने। अब सुनो, अब मैं नंबरिंग करता हूँ, ये मेरा फर्स्ट टर्म, ये सेकंड, ये थर्ड, 7 8 9 10 11 12
इसका जरूरत नहीं है। माई आंसर सेज दैट 13 टर्म्स को आप ऐड करोगे तो आंसर कितना आएगा 78। तो मैं ये 13 का 13 टर्म्स में ऐड करने जा रहा हूं। सॉरी, मैं ये सारा ऐड करूंगा और मैं आपको आंसर 78 निकाल के दिखाऊंगा। पहले तो 4 ही टर्म से हो रहा था ये, अब इतने सारे टर्म्स ऐड होने के बाद भी 78 कैसे आता है? लेट्स अंडरस्टैंड दिस, कैसे आएगा। हाँ हाँ, वही तो, ध्यान से समझना ये चीज। नेगेटिव वाले देखो, एग्जैक्टली 24 प्लस 21 प्लस 18 प्लस 15 प्लस 12 प्लस 9 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 0 प्लस -3 प्लस -6 प्लस -9 प्लस -12। ठीक, ये प्लस थोड़ा शक्ल इसका खराब हो गया, करते हैं। +9 -9 कैंसल, -12 + 12 कैंसल, -3 + 3 कैंसल, -6 + 6 कैंसल। कितना बचा? का एडिशन कितना आएगा दोस्त? आ गया ना 13 टर्म्स का भी एडिशन 78। समझ रहे हो? तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाओ, अगर दोनों पॉजिटिव आंसर आ रहे हैं लिख देना कि यार सही है, तो भी आंसर सही है। क्लियर है? ऑलराइट, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, बड़ा टाइम लगा दिया हम लोग ने। एक आखिरी सम बचा है, वो भी कर लेंगे। ये सम बड़ा इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई में बहुत बार पूछा गया है, ध्यान से सुनना ये सारा चीज। आखिरी समय हमारा, बहुत ध्यान से देखना, क्वेश्चन पढ़ेंगे, प्रूफ रीडिंग एक बार होगा। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स ऑफ अ लिस्ट ऑफ नंबर्स। सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स को समझ आया? टर्म्स के पहले जो नंबर होता है उसको क्या बोलते हैं? एन। क्या बोलेंगे? एन। कहां पढ़ाया था? इधर पढ़ाया था, देखो रिटन इट ओवर हियर। कहां गया? कहां गया? टर्म के बाजू में जो भी लिखा होगा उसको क्या बोलेंगे? एन। ऑल राइट, लेट्स गो नेक्स्ट पेज। मैंने बोला था आपको स्टार्टिंग में, इंट्रोडक्शन थोड़ा बकवास दिया है मैंने, मैं सच बता रहा हूँ, लेकिन मेरे पास उतना टाइम नहीं है। आई नीड टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स राइट नाउ। बाद में तो मैंने सारा चीज कनेक्ट कर ही दिया है। टर्म्स यानी एन का वैल्यू 24 है। सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स का मतलब क्या? S20 सम बोला है ना 24 टर्म्स का, इसका मतलब S24। S24 आपको फाइंड आउट करना है। S24 फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स ऑफ अ लिस्ट ऑफ नंबर्स। उस यंत टर्म इज गिवन बाय, अच्छा यंत टर्म तो दिया हुआ है, nth टर्म आपको दिया हुआ है, गिवन an इज इक्वल टू 3 + 2। nth टर्म आपको दिया हुआ है, लेकिन आपसे पूछा जा रहा है कि बताओ 24 टर्म्स का एडिशन क्या आएगा? पहले 24 टर्म्स का एडिशन क्या आएगा? कैसे करेंगे? अब देखो इस सब में तो ये चीज है, ना एपी पता है, ना कुछ ए पता है, ना डी, वी डोंट नो एनीथिंग, डोंट नो एनीथिंग। तो इस सब में लॉजिक क्या है, ध्यान से समझना। आपको nth टर्म इज गिवन बाय, nth टर्म आपको दिया हुआ है। nth टर्म भी कसा दिलेला आहे तुम्हाला? nth टर्म कैसा दिया है? n के टर्म्स में दिया हुआ है। देखो इस सम को अलग बनाने का तरीका ये है इनका, ये चाहते तो nth टर्म ऐसा दे सकते थे, nth टर्म an इज इक्वल टू 7 8 78 वॉट एवर इट इज। अगर नंबर दिया होता ना, फिर इसका सोच कुछ और हुआ होता। बट आपको मेकआउट कैसे करना है कि ये सम अलग है? इनके nth टर्म में आंसर में क्या लिखा हुआ है? n लिखा हुआ है। nth टर्म में जब भी n आएगा तब आपको क्या करना है, ध्यान से सुनो। तब आपको एक एक करके वैल्यू लेना है। टेकिंग टेकिंग n इज इक्वल टू 1। n का वैल्यू 1 लोगे आप, फिर n का वैल्यू 2 लोगे, फिर n का वैल्यू 3 लोगे, क्यों लोगे सब बताएंगे। n का वैल्यू 1 ले लो पहले, n के जगह 1, इधर भी n के जगह 1, 3 प्लस इंटू 1, a1 इज इक्वल टू 3 + 2, a1 इज इक्वल टू 5।
ले लो n इज इक्वल टू, टेकिंग n इज इक्वल, अपना an का फॉर्मूला दिया हुआ है 3 प्लस 2n, a2 इज इक्वल टू 3 प्लस 2, a2 इज इक्वल टू 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 7। समझ पा रहे हो मैं क्या करने का कोशिश कर रहा हूँ? मैं एपी तैयार करने का कोशिश कर रहा हूँ, समझ रहे हो? दिस हाउ यू हैव टू डू इट। आपको n का वैल्यू 1 लेना है, फिर 2 लेना है, फिर 3 लेना है, एक बार n इक्वल टू 3 भी लेंगे, टेकिंग n इज इक्वल टू, an का फॉर्मूला क्या है, an इज इक्वल टू प्लस 2n, 3 इज इक्वल टू 3 प्लस 2, 3, a3 इज इक्वल टू 3 प्लस 6, a3 is equal to 9, all right, a3 is equal to 9, the ap is, the ap is, अभी ap लिखेंगे, ap कैसे लिखेंगे, a1 a2 a3, फटाफट लिखेंगे, देखो a1 का वैल्यू है 5, a2 का वैल्यू है 7, a3 का वैल्यू है 9, डॉट डॉट डॉट, ये रहा अपना ap, ये रहा अपना ap, राइट। ap नहीं था, हमने ढूंढ के निकाला, इसके लिए एक ट्रिक यूज किया, n का वैल्यू 1 लिया। इफ यू आस्क मी सर ये कैसे समझ आएगा, कब लेना है n का वैल्यू 1, सिंपल बात है, an के फॉर्मूला में, an की वैल्यू में अगर ये खुद से n वाला टर्म देंगे तो आपको यही सीक्वेंस यूज कर, यही ट्रिक यूज करना है, n का वैल्यू 1, n का वैल्यू 2, फाइनली आपको एक एपी मिल गया। अब एपी मिलने के बाद हम लोग डी फाइंड आउट करेंगे, डी इज इक्वल टू ए टू माइनस ए वन, डी इज इक्वल टू, ए टू क्या है हमारा 7, ए वन का वैल्यू 5, तो डी का वैल्यू कितना मिला हमको 2, ए पता है हमको, डी पता है हमको, यू नो एवरीथिंग। अब हमको S24 फाइंड आउट करना है ना, S24 कैसा फाइंड करना है, वेरी सिंपल, देखिए यहाँ पर ए का वैल्यू हमको पता है, कितना वैल्यू आ रहा है ए का 5 ना, ए यानी 5 ना, यहाँ पर पहला टर्म क्या है यहाँ पर, ए इज इक्वल टू 5, पहला टर्म, ओके, ए इज इक्वल टू 5 पता है आपको, का वैल्यू 2 पता है आपको, आपको S24 निकालना है ना, यू हैव टू फाइंड S24। दोस्तों जब S24 निकालना हो तो n का वैल्यू क्या है यहाँ पर, सिंपल है, यहीं पर हम लोग ने बोला था ना, टर्म के पहले वाला नंबर यानी किसका वैल्यू होता है, n का वैल्यू होता है, n का वैल्यू 24, ठीक है। फॉर्मूला लगाएंगे, Sn इज इक्वल टू, Sn इज इक्वल टू n बाई 2 इंटू ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू S24, n की जगह 24, 24 अपॉन 2 इंटू ब्रैकेट 2 इंटू 5 प्लस n माइनस 1 यानी 20 माइनस 1 d यानी 2, simple, 2 1s are 2, 12s are 24, very simple, S24 has to be 12 into bracket 2 5s are 10, 24 minus 10 is 23 into 2, it's very simple, let's go a bit ahead, S24 is equal to 12 into bracket 10 plus 46, S24 is equal to, S20 is equal to 12 into bracket 10 plus 46 has to be 56, से मल्टीप्लाई करो, 2 12 2 1 5 2 10 11 0 5 आएगा 672, S24 हैज टू बी 670, खत्म, बहुत आसान। ऑलराइट, तो S24 हमको निकालने के लिए बोला था, S24, जबकि हमारे पास an दे के रखा था 3 प्लस 2n, ठीक है। ऐसे सम्स में n का वैल्यू 1 2 3 लेने का, ap फाइंड आउट करने का, d का वैल्यू फाइंड आउट करने का, and here you go with the formula for Sn. I hope you people have understood this lecture. It has been a long time, very long time. Make the speed fast and continue as far as you can like. We'll go with the next lecture, like with the next set of sums in the very next part. Right, I'll upload it today itself. Thank you so much for viewing this up till here. चलिए, आपको समझा पक्का?